Hi, good evening, everyone. Thanks for being here. No, not my first time in Hyderabad. I've spent one whole month here in Hyderabad shooting for an English film. So I'm very familiar with the city now, and it was as recent as a few months back. So yeah. Oh, that's amazing. Now we will open the round for Q&A for the media. जी जी हेट स्टोरी फ्रेंचाइजी एरोटिक थ्रिलर की है एरोटिक थ्रिलर है जी सही बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का ये बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं और बिल्कुल उनका विजन जो है उन्हें शुरू से पता था क्या चाहिए उन्हें और वही फिल्म में दिख रहा है सो वेरी वेरी हैप्पी टू वर्क विद हिम लेटेस्ट मेमोरेबल मोमेंट यही है आपके साथ यहाँ पर ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे और आई थिंक जितने भी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ जितने भी दिन हम लोग ने शूट किया आई थिंक काफ़ी मेमोरेबल रहा है और एवरी डे वाज अ लॉट ऑफ फन जी, अच्छा ही रहा। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को शायद पसंद आ रहा है, तो उसका मतलब अच्छा ही रहा। जो जब हम लोग किसी चीज़ को इन फ्रंट ऑफ द कैमरा शूट करते हैं और उसको ढंग से शूट करते हैं और उस हमें लगता है कि करेक्ट सब जा रहा है और उस वो हम जज कर पाते हैं खाली आपके रिस्पॉन्सेज से। तो जिस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है हमारे ट्रेलर्स को, हमारे गानों को, बहुत अच्छा लग रहा है। इमेज बदलने की कोशिश तो नहीं पता, बट हम एक्टर्स हैं, हर फिल्म में एक जैसा नहीं करेंगे, एक जैसा करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे ना। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करना ही हमारा जॉब है और वही करने की कोशिश की है। जी मीडियम चेंज करने से हम जो करते हैं वो तो चेंज होता नहीं है इट्स जस्ट दैट फिल्मों में हमारे पास लग्जरी ऑफ टाइम होता है शूट करने का और हमें पता है कि स्टार्टिंग टाइम क्या है प्रोजेक्ट का और एंडिंग टाइम क्या है और उस टाइम में वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है जबकि टेलीविजन में वही चीज़ हम हर रोज़ दोहराते हैं हर रोज़ नई स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो कई सालों तक चलता है तो थोड़ा एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोरिंग हो जाता है चांस है अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट होगी अगर कोई अच्छा शो होगा सीजन बेस्ड शो होगा तो डेफिनेटली आई थिंक कोई भी अपना करियर स्टार्ट करने से पहले जॉनर नहीं देखता है और अगर देखता है तो वो इट्स अ वेरी लिमिटेड वे ऑफ थिंकिंग तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपना करियर किस जॉनर के साथ स्टार्ट करूंगा मैंने ये सोचा था कि जब भी जो भी करूंगा स्टोरी के हिसाब से करूंगा सो दैट वाज अ गुड स्टोरी फॉर मी No, there is no competition because Daisy and me do not have any scenes together on screen. So also we're all working in the same film so we're not competing with each other we're actually competing with other teamwork. films We've tried to Yeah. make a very good film for all of you. So there's no competition. आपस में competition कर लेते तो picture कहाँ से बनाते हैं? Oh, it feels good. But as I said, I did not get the opportunity to share the screen with Daisy. I mean, I wasn't shooting with Daisy. Did not get to be on sets with her. So I don't know. Hi, Vaishali. No, it wasn't, and I don't know why this is coming across as that. This was just. I was very, very kicked about the character that was offered to me. I really liked the story, and this was what was required for the character, and that is the reason I've done this. Maybe it is so drastic because I've not done something like this in the past, but then, as I said, I'm an actor. I'm here to experiment, and I will be experimenting with more things, of course, in future. A strong voice you have, yeah. Well, an erotic thriller is something that, a genre actually, that I wanted to explore. And as an actor, I want to explore all the possible genres. A couple of genres still remain: a historical someday, a biography, uh, a sci-fi someday. So, well, this one seemed just right. There have been a few other offers in the same genre, but something was amiss from my point of view. But in this one, I felt everything fell into place. And I had no second thought when I first heard the story. I was quite sure I wanted to be a part of this.
It's a like I mentioned earlier, it's a really strong story. So with a lot of drama, a lot of emotions. So there's plenty of opportunity for me as an actor to perform. We have those kind of scenes with a lot of meat, and I think apart from the erotica aspect of it, which is one of the aspects of the performance, you'll also get to see the drama and all of that, which I've not done for a while. This kind of space. So yeah, that was what was something that I was very keen to do. So it's a thriller, so we can't really give out too much of the film, but through the trailers, as you make out, we are husband and wife. And Karan proposes to spend a night with my wife, and then the story goes I on asked to. for permission. He asks for the permission, exactly. He proposes, and then I, of course, don't accept the proposal, and thereafter there are many dimensions and layers to the story. It's a very, very important film for me. It's the beginning of my film career, and I think every film that an actor does is very important for them because you put in so much in it, and also your future work depends on what you're doing currently. So it's extremely important. Why have they told you that? No, I've signed a 3-film deal with Kumar Mangat, who produced Alone. Yeah, not with T series, not yet. But if you heard something like that, that's good news. जी जी, कॉमेडी भी आएगी। एक फिल्म कर रहा हूँ टॉम डिक एंड हैरी, उसका दूसरा है पार्ट, तो अगले साल उसकी शूटिंग शुरू करेंगे। लेकिन ये एक फिल्म कर ली है, देखो अच्छी लगती है तो अच्छी बात है। आप ये फिल्म मत देखना। फिटनेस का मंत्र है कि मेक श्योर यू गो टू द जिम एवरी डे, और जो आपका दिमाग आपके लिए एक्सक्यूजेस बनाता है, डोंट फॉल प्रे फॉर दैट, प्रे टू दैट। मैं जो है मेरे पास उसमें यकीन करता हूँ। बट 8 पैक और 6 पैक इज नॉट समथिंग दैट इज that equals fitness. Fitness is different. What you look like is just a byproduct of what you do. सिर्फ एक। शर्मन आपके कितने मैं body थ्रू आउट थे? द फिल्म bare bodied हूँ सर। मुझे कपड़े पहनने ही नहीं थे, डिजाइनर का बड़ा खर्चा बच गया इसमें। दोनों के साथ शुरुआत हमारी हुई थी वजह तुम हो गाने से, तो वो करण के साथ था, और वहाँ से फिर शुरुआत हुई और फिर शर्मन के साथ करता हूँ। एक्सपीरियंस ये सर काफी हेल्प किया एक्चुअली ना, अच्छी बात है अगर वो एक्सपीरियंस है तो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काफी हम सबको हेल्प किया। हाँ, मैं क्लासेस देता था सबको, विशाल को, शर्मन को, जरीन, डेजी, सबको क्लासेस दिए मैंने। यहाँ पर ऐसा का मतलब क्या हुआ? मैं टेलीविजन पे भी एक्टिंग कर रहा था और फिल्म में भी एक्टिंग ही कर रहा हूँ। बात अलग ये है कि हर रोज आधे घंटे के लिए नहीं आती है फिल्म। हाँ, वही अलग बात है। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक फिल्म की है जो हमने 46 डेज में कंप्लीट की है, जिसमें से 24 दिन मैंने शूट किया। तो मेरे लिए ये प्रोजेक्ट ये खत्म हो गया। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो टेलीविजन में क्या होता है कि आप हर रोज वही शो आधे घंटे के लिए हर रोज पेश करते हैं, तो फ्रॉम एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग लगता है कि हम आपके घर में भी हर रोज शाम को 8:30 बजे नहीं आ रहे। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। देखिए, मैं कबूल है कि टाइम पे हैदराबाद में आया नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, हेट स्टोरी करने के बाद आया हूँ, तो आई थिंक फेम का कोई कंपैरिजन नहीं है। एज एन एक्टर
लाइक आई सेड वहाँ भी एक्टिंग की थी और यहाँ भी एक्ट ही कर रहा हूँ, तो हाँ नहीं मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा था आपको। हाँ, दो नाम समझ गए आप। चलिए, वेरी गुड। बहुत यादगार है सर, मैं हर हर सीन याद है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच once again for being here. Good night. Thank you so much. I would once again like to thank everyone for being present. Honestly, when I signed on, when I signed this film, I had no idea about the previous. No, I had not, and I did not even know that the franchise was so big. It's later on when I was already a part of the movie, and then when I started hearing things about it, so I was like, okay.